आ गए सभी? Can you hear me? मेरी आवाज आ रही? हाँ? Yes. Yes, sir. चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमें एक प्रोजेक्शन डिफाइन करनी है फ्रॉम x on to y. So I have to define p from x to y. तो मेरे पास क्या है? मेरे पास अब है fi which belongs to, of course, what is that? X star. And when I restrict it to the finite dimensional subspace, it becomes gi. हाँ, क्या है मुझे बता दो? gi belongs to y star. And gi are defined as gi of summation alpha I xi. Xi are the basis of y. I runs from 1 to n is equal to alpha I. Now remember this. तो ये मेरे पास सामान है. इससे मुझे प्रोजेक्शन बनानी है. So I define this to be p of x. We define projection to be p of x is equal to summation I runs from 1 to n fi x xi. Now what are fi's? Now fi is a map that belongs to x. So if I apply it to x, what do I get? I will get a scalar. So fi of x would belong to k. So fix is a scalar and I'm taking a combination of the vectors of xi which are a basis. Now xi जो है is a basis for y and I'm taking a linear combination. Of course this whole linear combination scalars times the basis of y belongs to y. So map तो well defined है. Then p is also onto. P is onto. Why? Now p would be onto anything inside y would be of this form. So कोई भी miss होगा नहीं. So everything must have a pre-image because functionals cover the whole of field. Because functions are linear and continuous, so they map the whole field. Because fi's of x is the whole of k. Therefore, it must have the. मतलब जब मैं सारे k पे range करूँगा और x's को basis में लूँगा, so ये सारा y map हो जाएगा. Anyway, so p is on to the straightforward है. दूसरा p is p linear. So अब चूंकि fi linear है ना? So और continuous भी है. Now since fi's are linear and continuous, मतलब it's easy rather to check. Therefore, p is also continuous. The question is मतलब ये हो गया linear हो गया continuous हो गया. अब वो idempotent है. उसके लिए मुझे दिखाना होगा p composition p, that's our p square of x मुझे दिखाना है p of x के बराबर है. ना वो थोड़ा दिखाना होगा. So this is p of x, now which is nothing but p of summation I runs from 1 to n fi x times xi. Okay, good. Now the question is, what is p of p को define कैसे किया गया है इसे? हाँ? Okay. Now where does should I? ठीक है. So can I take them out? That's the important part. Okay, let me see. P of x is this thing. What would be P of this thing? P of x इसके बराबर होता है. What should be the P of whole thing? Actually, I can write it as. Okay. Now look at this. I can write it as
हाँ, मैं सीधे लिख सकता हूँ, इसमें कुछ नहीं है. I can write it as summation I runs from 1 to n because p is linear. p मैंने कहा ना, चूंकि fi सारे के सारे लीनियर हैं, therefore p is also linear and continuous. Linear and continuous. अब चूंकि लीनियर है तो इसका मतलब मैं स्केलर उसको बाहर निकाल सकता हूँ और यहाँ वेक्टर्स पे इसको लगा सकता हूँ. Now what is p of xi? वही तो है ना इम्पोर्टेंट. अब what is p of xi? p of xi किसके बराबर होगा? थिंक अबाउट दिस. अगर मैं यहाँ पे xi लिखूं तो क्या होगा? p of x है बराबर summation I runs from 1 to n fi x into xi. Now what would be p of xi? Let me write it like this, right? तो इसको मैं लिख सकता हूँ xi को. चलो मैं लिख सकता हूँ 0 into x1 plus 0 into x2 plus so on and so forth plus कहीं पे I आएगा. So it would be 1 into xi plus 0 बाकी सारे 0. यानी सिर्फ एक जगह है ना इसका स्केलर 1. So what is this? यानी p of xi should be summation of these scalars जो यहाँ पे है ना, multiplied by these, मतलब it should be just xi. क्योंकि बाकी fix की जगह क्या है अब, है ना. अगर मैं इसको देखूं ना, अब इसको और इसको कंपेयर करूं, oh sorry, I've got p of this thing is equal to this. तो अगर यहाँ पे xi हो, right, which is the same thing as 0 into whatever, so it should be just xi. So I hope it's clear. Okay. Is it clear? नहीं, सही तो नहीं है, मैंने गलत लिखा. क्योंकि मैं जब कह रहा हूँ ना p of xi, तो xi यहाँ आना चाहिए अंदर, क्योंकि x है ना इधर. देखो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मेरा आर्गुमेंट यहाँ जाता है, यहाँ नहीं जाता. यानी p of xi should be actually summation I runs from 1 to n fi of xi multiplied by xi. ये सही है, क्योंकि मुझे x को रिप्लेस करना है. Now the question is, what is fi of xi? fi of xi देखना है मुझे. So अब चूंकि xi कहाँ बिलोंग करता है? xi is a basis of y, so xi belongs to y, क्योंकि ये उसकी बेसिस में है ना, x1 x2 xn सारे के सारे. और जब fi when restricted to y is gi, so चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, this is actually, मैंने गलत किया कुछ नहीं, मुझे p of xi ढूंढना है, which would be summation I runs from 1 to n fi, चलो मैं थोड़ा इसको लंबा चौड़ा कर देता हूँ, into summation I runs from 1 to n fi xi into xi. ये वैसे खत्म हो जाएगा अभी जो तुम देखोगे. अब चूंकि xi वहां पे है, तो it would be summation I runs from 1 to n fi x into summation I runs from 1 to n gi xi into xi. अब यहाँ ये काफी अभी खत्म हो जाएगा, नो इशू. Since xi belongs to y, तो मैं f को g से रिप्लेस कर सकता हूँ. Now the question is, रबर कहाँ गया? मैं नहीं चाहता दूसरे पेज पे हम जाएं. इरेजर मिल गया हमें, तो यहाँ, हाँ, तो ये है अपना GI की डेफिनेशन. GI of summation alpha xi is equal to alpha i. So that means अगर मुझे इवेलुएट करना हो इस फॉर्मूला के हिसाब से GI xi, that would be g of, ठीक है, g of, यहाँ वो चलेगा, it would be 0 into x1, इसको मैं लिख सकता हूँ, plus so on and so forth, plus 1 into x1, plus so on and so forth, plus 0 into x. यहाँ I है, हाँ, मतलब xi can be written like this as a linear combination. तो अगर हम इसको इस तरह से linear combination लिख सकते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर GI, देखो जब यहाँ ये इसको मैच करता है तो अल्फा आई आता है ना, जब GI
जो यहाँ मैच करेगा ना स्केलर, वही आता है। अब अगर सपोज आई हैव गॉट GI, सपोज इट्स लाइक G1 मान लो फॉर टू बी डेफिनेट, G1 of x2 किसके बराबर होगा? It would be 0 because you can write it as, well, let me write it as G1 of x2 क्या होगा? वो होगा 0 into x1 plus 1 into x2 plus 0 into x3 plus so on and so forth 0 into xn। अब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे देखना है जो इसके साथ मैच होता है ना स्केलर, वही देखना है। अब 1 के साथ कौन सा स्केलर यहाँ मैच होता है? x1 का स्केलर, सो इट शुड बी 0। इसी तरह से G1 of x3 क्या होगा? 0, लेकिन G1 of x1 1 होगा। तो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी GI जब XI पे लगेगा, अगर ये दोनों मैच करते हैं तो ये 1 है, अदरवाइज 0 है। अब हमारा काम हो गया। सो दिस इज समेशन I runs from 1 to n FIX। ये जो सम है, इसमें खाली वो बचेगा जब ये I और I मैच करेगा, तब उसका नाम होगा 1। सो इट शुड बी जस्ट x, अदरवाइज बाकी हर जगह के लिए GI XI 0। ओके, बट व्हाट इज दिस? हम तो वापस पहुंचे गए ना पीक पे, ये तो है P of x। So therefore P square is equal to P, and therefore and hence सीधे लिखते हैं y is complemented in x। चलो ये काम हो गया। एक और कॉन्सिक्वेंस हान-बनाक थ्योरम की हमने की। अब मुझे पता नहीं, शायद एक और है, पता नहीं वो कहाँ है। ओके 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 चलो ये करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, हाँ, ये एक और चीज हम करेंगे बिफोर गोइंग एनी फर्दर। जैसे मैंने कहा था अभी कि फॉर अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस एवरीथिंग दैट इज लीनियर इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम एक रिजल्ट करेंगे, छोटा सा रिजल्ट है, उसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फ्रैंकली स्पीकिंग। नाउ फॉर एन इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस, infinite dimensional space X, there exists a non-zero linear transformation on X, हम हमेशा ढूंढ सकते हैं, which is not continuous। यानी इन्फिनिट डायमेंशनल में कम से कम एक हमें मिलेगी which is not continuous। एक्चुअली बहुत सारी मिलेंगी, मतलब यह है कि मतलब it always exists, मतलब कहने का मतलब है Bxy is a proper subspace of Lxy if X is infinite dimensional। So let's do the proof, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। Okay, now चूंकि ये infinite dimensional space है, we can all, मतलब since X is, क्या लिख रहा हूँ, since X is infinite dimensional space, we can find an infinite linearly independent set
Let us call it a1 comma a2 so on and so forth in x. क्योंकि अगर फाइनाइट ही होता है इसका इन्फिनिट डायमेंशनल सेट फिर तो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट फिर तो इसकी डायमेंशन ही फाइनाइट हो जाएगी. सो लेट हम इसकी मदद से क्या करेंगे, xn को मैं मानता हूं. लेट दिस बी an divided by n times norm of a for all n running from 1 to so on and so forth, so that norm of xn जो खुद होगा, ये जो मैंने नया इससे क्रिएट किया एक सेट ऑफ वेक्टर्स, it is equal to 1 by n. Now it implies that now let L be equal to this collection जो मैंने की x1 x2 जिसमें हर एक का नॉर्म है 1 by n. Now then L, let this be L, then L is linearly independent, is also linearly independent in x. क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ, ये तुम खुद ट्राई करो. अगर ये linearly independent है तो ये जो x's हैं, what are these? These are scalar multiples of whatever, no? these vectors. So they are linearly independent. मैं चाहता हूँ ये तुम खुद करो, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं. ठीक है ना? Now every linearly independent set can be extended to the basis of that space. तो what's मतलब वही हमारा main idea होगा. अगर ये linearly independent है in X, therefore it can be extended. उसको हम बड़ा करके basis बना सकते हैं. Extended to a basis B of X, so that हमारे पास L है, which is a subset of this basis set. Okay. Now let Y be a non-zero space, normal linear space, and define. अब मैं define करूँगा map T from X to Y, right? अब जो you have to remember X में मेरे पास एक basis है जिसका subset है L, और L जो है वो है I think x1 x2, मतलब ये तुम याद रख लो, such that norm of xn is equal to 1 by n for all n. तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरे x में ये दिया हुआ है. So what I write? So I define t of x to be b if x belongs to L, some vector where b is some non-zero vector जो कि होना चाहिए 0 not equal to b belongs to y. ये मैंने y लिया ना एक जिसमें 0 से ज्यादा कोई वेक्टर है, तो मैंने इसको b पे मैप किया अगर x L में है, and this is equal to 0 if x belongs to b minus L. इस तरह से ये जो t मैंने डिफाइन किया, t is defined on the basis of x. मैंने बेसिस पे डिफाइन कर दिया, मतलब L में है तो ये कांस्टेंट मैप है, it sends the vectors inside this L, और चूंकि L B का सबसेट है, और अगर बाकी जो बचे कुचे हैं L के बगैर B में, उनको ये 0 पे मैप करता है. So it can be extended as a linear map to whole of X. Obviously वो कैसे, मान लो अब x x में है, ठीक है ना? It implies that then x, चूंकि इसकी basis हमें पता है, it can be written as a finite combination, finite sum alpha I. Should I write bi, where bi belong to set B? तो एक finite combination बन जाएगी. So I define my f of, ये जो t of x है, मैं मानूंगा फिर t of x is nothing but t of summation finite alpha I bi. मैं इसको डिफाइन ही करता हूँ इस तरह से, finite, क्या मैं कह रहा हूँ, summation finite alpha I t of bi. यानी अगर बेसिस एलिमेंट्स पे डिफाइन हो गया तो ऑटोमेटिकली हम वाया दिस ट्रिक हम इसको पूरे वेक्टर स्पेस पे डिफाइन कर सकते हैं.
सो ये याद रखते हुए तो जब मैं ये करूंगा देन t इज लीनियर, t इज लीनियर। तो वो हम देख सकते हैं। अब अगर x y बिलोंग करते हैं x में, तो x वुड बी, मैंने उनका नाम bi रखा था, समेशन सम फाइनाइट कॉम्बिनेशन अल्फा i, अल्फा मैंने रखा, क्या रखा नाम, x का मैंने अभी क्या दिया था, गुड, अल्फा i bi, राइट, और y होगा फिर समेशन फाइनाइट बीटा i bi। सो ऑफ कोर्स x प्लस y क्या होगा। अब देखो ये सारे डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है इट इज समेशन अल्फा i bi प्लस समेशन, ऑफ कोर्स यहाँ फाइनाइट सम है, यहाँ भी फाइनाइट सम है, तो यहाँ होगा बीटा i bi। सो हाउ अबाउट t of x plus y, t of x plus y होगा ऑफ कोर्स दिस। अब इसमें एक चीज हो सकती है, या तो बी आईज में यहाँ मतलब सारे के सारे बी आईज है ना, बी आईज एन इन्फिनिट सेट, अगर फाइनाइट होता हमें पता है ये बी आईज और ये बी आईज सेम होंगे इफ इट वाज अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। अब ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अनकॉमन है ना, मतलब कोई बी आई इसमें आ गया, कोई बी आई इसमें नहीं आया, मतलब इसमें आ गया, कुछ कॉमन है, कुछ हो सकता है सारे के सारे अनकॉमन हो, सपोज सारे के सारे अनकॉमन हो, है ना। So it would become something like summation, ये बन जाएगा summation alpha I, मान लो सारे के सारे अनकॉमन हो, चलो मैं यहीं पे इसको अनकॉमन कर देता हूँ, p स्टार I या b डैश I, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस है, तो दे नीड नॉट बी सेम, ऑल सेम नहीं हो सकते, तो फिर तो ये लीनियर है अगर मैं उसको ऐसे डिफाइन करता हूँ। अब मेरा मैप जो है वो दिस वुड बी समथिंग लाइक, हमें स्केलर्स को बाहर निकालना है, so it would be summation alpha I, कैसे लिखूं मैं, एक्चुअली आई कैन नॉट शो इट दैट प्रॉपरली, लेकिन आइडिया मैं बता सकता हूँ, मतलब क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, क्योंकि हम मतलब बेसिकली क्या होगा, चलो मैं एक एग्जांपल से देता हूँ, सपोज इट वाज लाइक अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस अल्फा 3 b3, और यहाँ पे था मेरा बीटा 1 लेकिन b2 प्लस बीटा 2 b3 प्लस बीटा 3, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये 3 डायमेंशनल है ना, बीटा 3, लेट मी राइट इट एज, मैंने क्या किया था, बीटा 2 बीटा 3 b4 प्लस बीटा 4 b5, मतलब इस तरह से अगर ये हो, ये सम, ठीक है, मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ये जो ये सम है, सपोज इट वाज लाइक दिस, अब मैं t इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, सो दिस कैन बी रिटन एज मेरे अल्फा 1 into t of b1 plus alpha 2 into t of b2 plus alpha 3 into t of b3 plus beta 1 into t of b2 plus beta 2 into t of b3 plus beta 3, आई होप तुम्हें समझ आओ तो, कोशिश तो है, प्लस बीटा 4 into t of b5, तो मान लो इस तरह से है सिचुएशन, हाँ ऐसे कर सकते हैं। नाउ सपोज B1, अब सिचुएशन ये है, जो मेरा थ्योरम है कि अगर B1 B में है, सो T ऑफ B1 इज इक्वल, मतलब L में है, सॉरी, तो ये फिक्स्ड है, ये B आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या B होगा। सपोज अब B1 B2 के लिए ये मतलब कौन, मतलब ये मैप होते हैं, मतलब सपोज B1 B2 जो है वो L में बिलोंग करते हैं, वो अगर L में बिलोंग करते हैं देन T ऑफ B1 हो जो भी है वो कांस्टेंट है, वो B है, सो इट वुड बी बेसिकली अल्फा 1, अगर वो सिचुएशन है, सो इट बी अल्फा 1 इंटू बी, बाकी तो 0 हो जाएंगे, अल्फा 2 इंटू बी, हाँ यहाँ पे ये बचेगा, सो प्लस अल्फा नहीं बीटा 1 इंटू बी,
So needless to say, it would be the same thing as, because it would be alpha 1. हाँ ये हो गया. So this would be basically t of x plus t of y. अगर मैं अलग अलग से करूं तब भी वही होगा. मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है मुझे लगता है. अगर ना भी समझ आए मैं किसी और दिन फिर से रिपीट करूंगा. सो t इज लिनियर. अब मुझे बेसिकली दिखाना है इट कैन नॉट बी कंटिन्यूअस. नाउ वी नो दैट ये जो मेरी xn वाली सीक्वेंस है, which was, what was that? It was जो मैंने लिया था an divided by n times a of n norm. Now this would go to 0 as n approaches infinity because इसका norm. So xn जो है it converges to 0. But जो t of xn है, by definition it is just b which is non-zero for all n. Therefore t is not continuous at origin and hence t is not continuous. तो मतलब इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस में एक मैपिंग ऐसी हमेशा एग्जिस्ट करती है जो लीनियर है पर कंटिन्यूअस नहीं है. क्या हमारे पास और कुछ करना है? राइट. ओके. तो हान-बानाक थ्योरम की कॉन्सिक्वेंसेस हमने कर ली. हाँ, we can talk about duals now, concrete duals. अभी जो हमने की थी ना duals की बात. Now, पहली बात, so हाँ, तो हमें पता है, जैसे टोपोलॉजिकल स्पेसेस में हमें पता है, we say x is homeomorphic to y. When is it homeomorphic to y? If there exists a mapping T from x to y such that T is a bijection and T inverse are both continuous. मतलब as हम कहेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है तो we say x is homeomorphic to y, or which means that as topological spaces they are same, essentially same, सिर्फ labeling का फर्क. As topological spaces x and y are same. तो इसी तरह से हम कहते हैं, अगर मेरे पास दो नॉर्मल लीनियर स्पेसेस हो, हम कहेंगे कि x is isometrically isomorphic to y if there exists a t from x to y. Of course, वही bijection. T is linear, T inverse is linear. वैसे वो तो होती ही है, इनवर्स ऑफ लीनियर मैप लीनियर ही होता है, लेकिन बाइजेक्शन होनी चाहिए तभी तो इनवर्स पहले डिफाइन होगा ना. बाइजेक्शन एंड t is continuous and t inverse is continuous. Yani t is essentially a homomorphism that is also an isomorphism of vector spaces. तो इसी हमने कहा इसको isometrically isomorphic. तो हम कहेंगे in that case हम लिखेंगे x को ऐसे. तो कहने का मतलब as normal linear spaces they are essentially same. I can say x is equal to y, no issue. Well, as normal linear spaces they are, कोई फर्क हम ढूंढ नहीं सकते दोनों में, because they preserved all the structure. अब इसमें हमें करना है बेसिकली डुअल्स की बात. तो जैसे मेरे पास एक स्पेस है L1. L1 is all scalar sequences x1, x2, so on and so forth, such that xi belongs to k and summation xi I runs from 1 to infinity is less than infinity. मतलब ये जो it can be, it's a summable sequence of scalars. Now what can I say about L1 star?
मतलब what is L1 star? This would be all mappings from L1 to K such that F is linear and F is continuous, मतलब and continuous. और of course continuity का मतलब वो होगा ना कि mod of f of x is less than equal to k times, मतलब can I say something about L1 star, मतलब can I see it, ये है क्या? तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे डुअल्स करेंगे, जैसे L1 का डुअल है, L1 स्टार जो है हम दिखाएंगे इट इज से आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू L infinity, यानी आई कैन से L1 स्टार इज द सेम एज, हाँ किसी ने पूछा कुछ, अयाजुल इस्लाम रेज्ड हिज हैंड, हाँ कोई क्वेश्चन? नो सर। तो हाथ क्यों इसमें आया ना, अयाज रेज्ड हिज हैंड। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि हम दिखाएंगे कि L1 का डुअल एज एन नॉर्मल लीनियर स्पेस एज अ Banach स्पेस इज द सेम एज L infinity, राइट? सो मतलब कहने का मतलब इट्स आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू L infinity, यानी हम उसको एज अ स्पेस सोच सकते हैं। मतलब दैट्स इंटरेस्टिंग। क्यों? हम क्या कह रहे हैं, हम के जो L1 है एक्चुअली दिस इज, ये तो फंक्शंस हैं, लेकिन वी कैन थिंक ऑफ इट इवन एज scalar sequences such that xi belongs to k and modulus of xi is less than k for all I greater than equal to 1 for some k positive. यानी ये sequence space is the same thing as this function space, मतलब it's a collection of functions, this is a collection of sequences, and they can't be distinguished as a normal linear space. So वही काम हमारा नेक्स्ट होगा कि हम डुअल्स निकालें, L1 का, LP का और भी कुछ स्पेसेस का। So let me stop here क्योंकि वो 7 मिनट में तो नहीं होगा। So any question जो तुम पूछना चाहो? हेलो, अरे सुन रहे हो? जल्दी से बता दो क्योंकि इसके बाद मेरी एक और क्लास है। हाँ यस सर। हाँ पूछो। पूछो, मैं तुम्हारा वीडियो ऑन कर दूं या तुम खुद ही करो, वैसे वो अलाउड है तुम्हें। किसको पूछना था? सर किसी को नहीं पूछना है। क्यों नहीं पूछना है? वही तो गड़बड़ है ना। तुमने, मैंने वो फिर लिंक भेजी थी उससे जो है ना, तो वो हान-बनाक थ्योरम का। यस। उसमें वो वैसे वो कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर से हैं, सब कुछ है उसमें। तो अगर